17வது மக்களவையின் கடைசி கூட்டத்தொடர் இன்றோடு நிறைவடையும் நிலையில் மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். நாடு இந்த 17வது லோக்சபாவுக்கு நிச்சயமாக ஆசீர்வாதம் அளிக்கும் சமயங்களிலும் நீங்கள் நடுநிலை தன்மையோடு செயலாற்றினீர்கள். அதற்காகவும் நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன், நன்றி சொல்லுகிறேன். आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए. கோபமான சமயங்களும் வந்தன, குற்றச்சாட்டுக்கான சமயங்களும் வந்தன. आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए, ஆனால் நீங்கள் மிகவும் தைரியத்தோடு இந்த மாதிரி சமயங்களை எல்லாம் சமாளித்தீர்கள். आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया. எங்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டினீர்கள். मैं आपका आभारी हूं. இதற்கு நான் உங்களுக்கு நன்றியுடையவனாக இருக்கிறேன். आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला. कौन बचेगा, कौन बच पाएगा? உலக மக்களே துன்பப்பட்ட कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? யாராவது பிழைத்திருப்பார்களா, யாரையாவது காப்பாற்ற முடியுமா போன்ற ऐसे में நிலையை ஏற்படுத்திய सदन में आना, ये भी अपना घर छोड़ के निकलना, ये भी संकट का काल था. பெருந்தொற்று வந்தது. इसके बाद भी இந்த சபைக்கு வர முடியுமா என்ற கவலையெல்லாம் ஏற்பட்டது. जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी, आपने उसको किया. அதற்காக அவையிலே என்னென்ன புதிய नहीं दिया. सदन நடைமுறைகள் செய்யப்பட வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் செய்தீர்கள். और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए, वो गति भी बनी रहे. और उस काम में सदन की நாட்டிலே நடைபெற வேண்டிய முக்கியமான பணிகளுக்கு எந்த விதமான வேகம் கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ அந்த வேகத்தை கொடுப்பதற்கும் நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்தீர்கள். दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा. நான் இந்த அவையிலே இருக்கின்ற அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் தேவைப்படுகின்ற நிதியை இந்த அவையின் நிதியிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு இவர்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தந்தார்கள். इतना ही नहीं, एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை தருவதற்காக தங்களுடைய நடவடிக்கைகளின் மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை தருவதற்காக இந்த உறுப்பினர்கள் எல்லாம் செயலாற்றினார்கள். कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं. और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, நம்முடைய बाहर इतने में मिलता है, உறுப்பினர்கள் इतने में मिलता है. நாட்டின் எந்த ஒரு மூலையிலும் கூட ஊடகங்களால் இந்த உறுப்பினர்களுக்கு ஏராளமாக சலுகைகள் கிடைக்கின்றது, கேண்டீனில் அதிகமாக शिकायत भी नहीं की, விலை உயர்ந்த உணவுகளை எல்லாம் உண்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் ஏற்பட்டது. बजेट करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया. इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. இந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து நாம் அனைவரையும் காப்பாற்றி இருக்கிறோம். இதற்காகவும் நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के
चाहे 17 भी हो, 16 भी हो, 15 भी हो, संसद का नया भवन होना चाहिए। इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। மக்கள் ये आपका नेतृत्व है, இடையேயும் உறுப்பினர்களிடையேயும் அனைவரிடையேயும் பாராளுமன்றத்திற்கு புதிய கட்டிடம் வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது, பேசி வந்தார்கள். कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। இன்று நாட்டிற்கு இந்த புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடம் கிடைத்திருக்கிறது. सभापति जी, एक संसद के नए भवन में एक विरासत का अंश और जो आजादी की पहली पल थी उसको जीवंत रखने का हमेशा இந்த हमारे புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் सेंगोल को ராஜ்யத்தின் அடையாளம், करने का काम, நம்முடைய குடியரசு தொடங்கிய காலத்தின் அடையாளம் செங்கோல் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. इवेंट के रूप में उसको हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है, जो भारत की இதனை आने நம்முடைய वाली நினைவிற்கு மீண்டும் கொண்டு வருகின்ற அந்த நிகழ்ச்சியும் உங்களுடைய வழிகாட்டுதலில் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. और आजादी की वो पल क्यों थी, हमें वो याद रहेगा, तो देश को आगे ले जाने की இந்த वो प्रेरणा செங்கோல் भी இங்கே बनेगी। வைத்திருப்பதனால் उस पवित्र काम சுதந்திரத்திற்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்கின்ற அந்த நிமிடம் நமக்கு எப்போதும் நினைவில் இருக்கும். कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली। இந்த சமயத்தில் G20யின் தலைவராக இருப்பதற்கான வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைத்தது. देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य நாட்டின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உலகத்திற்கு தங்களுடைய திறனை காண்பிக்கின்ற வகையில் G20யின் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. पर है, उसके साथ आपके नेतृत्व में G20 की तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए, அதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய தலைமையில் G20 நாடுகளின் महान परंपरा को लेकर के பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகர்கள் கூட்டம் உங்களுடைய தலைமையிலே நடந்தது. वैल्यूज को लेकर के सदियों से हम आगे बढ़े हैं। व्यवस्थाएं बदली होगी, लेकिन डेमोक्रेटिक मन भारत का हमेशा बना रहा है। उस बात को आपने காலங்கள் மாறினாலும் ஜனநாயக முறைப்படி நாம் அனைத்து செயல்களையும் செய்வரும் முறை மட்டும் மாறவில்லை. और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। शायद हमारे மதிப்பிற்குரிய சபாநாயகர் அவர்களே, ஒரு விஷயத்திற்காக நான் உங்களுக்கு குறிப்பாக नहीं गया है। நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். हम संविधान सदन जिसको कहते हैं, जो पुरानी संसद जिसमें महापुरुषों के जन्म जयंती निमित्त उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र आते हैं, लेकिन वो एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। பழைய பாராளுமன்றத்தை நாம் அரசியல் நிர்ணய சட்டசபை என்று இப்போது கூறுகிறோம். அங்கே நாட்டு தலைவர்களுடைய சிலைகள் இருக்கின்றன. அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக நாம் சில நாட்கள் கூடுவோம். 10 நிமிடங்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக அது இருக்கும். ऐसे होते थे, हर राज्य से 2-2 बालक उस दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वो मौजूद रहते थे, देश के नेताओं को, और बाद में वो पूरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थान पर जाते थे, वो सांसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்து மாணவர்களை அழைத்து இந்த பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சிகளை காண்பிக்கின்ற முறையை நீங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். இதற்காக உங்கள் பெயர் வரலாற்றிலே நிச்சயமாக இடம்பெறும்.
जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, காகிதமில்லா பாராளுமன்றம், பாராளுமன்றத்தை கணினிமயமாக்குதல் போன்ற செயல்களில் நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள். कुछ साथियों को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं। सब मैं देखता हूं जब यहाँ बैठे हैं तो ஆரம்பத்தில் कुछ करते रहते हैं। சில தோழர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டது, ஆனால் இப்போது பழக்கப்படுத்திக் கொண்டு விட்டார்கள். एक स्थायी व्यवस्थाएं आपने निर्माण की है, मैं इसके लिए आपका बहुत இதற்காகவும் நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब करीब 97% रही है। உங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரிலும் உறுப்பினர்களுடைய ஒத்துழைப்பின் பேரிலும் 17வது லோக்சபா மிகவும் 7% प्रोडक्टिविटी अपने आप में உற்பத்தி பூர்வமாக இருந்தது. நல்ல பணிகள் நடந்திருக்கின்றன. मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा இன்று 17வது லோக்சபாவின் கடைசி நாள், இறுதியை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற சமயத்திலே 18வது லோக்சபாவுக்கு திருப்பி வரும்போது ஒரு இலக்கோடு இலட்சியத்தோடு வர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहे। ये भी 18வது லோக்சபா 100% நன்றாக பணியாற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கோடு நாம் வர வேண்டும். सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। சபையின் இந்த வெற்றிக்காக நாம் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனைத்து கட்சியின் தலைவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव, हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया। हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आजादी के 75 वर्ष को சுதந்திரமடைந்து 75வது ஆண்டு விழா கொண்டாடும் போது நாம் இந்த அவையிலே உறுப்பினர்களாக இருந்து பணியாற்றியிருக்கிறோம் என்பது நமக்கெல்லாம் எத்தனை மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். उत्सव से बनाया और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी माननीय सांसदों को मिला है। और संविधान की जो भी जिम्मेवारियां, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है और उनके साथ ये जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं। இந்த காலகட்டத்தில் ஏராளமான சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। 21ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவின் ஆழமான வேர் இந்த செயல்பாடுகளில் காணப்படுகிறது. और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी இந்த हिस्सेदारी விஷயத்திலும் அவையின் பல உறுப்பினர்கள் சிறந்த வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார்கள். सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से நம்முடைய
பழைய தலைமுறையினர் எந்த விஷயங்களுக்காக பல வருடங்கள் காத்திருந்தார்களோ அந்த விஷயங்களை எல்லாம் இந்த 17வது லோக்சபா செய்திருக்கிறது. अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी. लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा के நாடு முழுவதும் ஒரே அரசியல் திட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினார்கள். அதற்கு பல தடைகள் இங்கே இருந்தது. उसका प्रकट அரசியல் சட்டப்பிரிவு 370ஐ நீக்கியதன் மூலம் நாடு முழுவதும் ஒரே அரசியல் சட்டம் இப்போது நிலவுகிறது. जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे. ये काम हमने पूरा किया. कश्मीर के भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था. आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे ஜம்மு காஷ்மீரில் வாழும் மக்கள் சமூக நீதி கிடைக்காமல் இருந்தார்கள். संतोष के अनुभव. எங்களுடைய நடவடிக்கை காரணமாக அங்கே சமூக நீதி இப்போது கிடைக்கிறது. आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बन के देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था. मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी. தீவிரவாதம் நாட்டிற்கு பெரும் துன்பத்தை தந்து வந்தது. वीर தேசத்தின் மார்பிலே குண்டுகளை செலுத்திக் கொண்டிருந்தது. आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे. हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए. मुझे पक्का विश्वास है நாங்கள் இந்த தீவிரவாதத்தை எதிர்த்து பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து ஒரு கடுமையான சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இந்த அவை அதனை நிறைவேற்றி இருக்கிறது. जूझते हैं उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा. हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे. हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिए. 75 ஆண்டுகளாக ஆங்கிலேயர்கள் தந்த அதே அந்த குற்ற சட்டங்களை நாம் பின்பற்றி வந்தோம். ஆனால் இப்போது நீங்கள் உங்கள் வருங்கால சந்ததியினருக்கு கர்வத்தோடு சொல்லலாம், अंदर करना चाहूंगा 17வது மக்களவை कि नया सदन இந்த புதிய குற்ற சட்டங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது என்று பெருமையோடு சொல்லலாம். एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है और वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम. இந்த அவையிலே நிறைவேற்றப்பட்ட பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதா, பெண்களுக்கு சக்தி அளிக்கின்ற அந்த இடஒதுக்கீடு மசோதா, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाटिन इसका जिक्र होकर के பழங்கால கலாச்சார பெருமைகளை மீண்டும் சொல்லுகிறது. सत्र था, लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था. इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था, जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है. और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, இந்த சட்டத்தின் விளைவாக வருங்காலத்தில் இந்த அவையிலே அதிக எண்ணிக்கையில் தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் வந்து அமர்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी. अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था. பல ஆண்டுகளாக நம்முடைய இஸ்லாமிய சகோதரிகள் कोई காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். अप्रकट रूप से कहे, लेकिन
तीन तलाक से मुक्ति का बहुत நீதிமன்றங்கள் அவர்களுக்கு नारी शक्ति के सम्मान சார்பாக தீர்ப்பு கொடுத்தும் இது நிறைவேறவில்லை. ஆனால் நாம் நிறைவேற்றிய அந்த தீன் தலாக் விரோதமான அந்த சட்டத்தின் காரணமாக அவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है. आदरणीय இந்த பெண்மணிகள் எங்களுக்கு நிச்சயமாக தங்களுடைய ஆசிகளை வழங்குவார்கள். हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. राजनीति की गहमा गहमी अपनी जगह पे है. राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है. लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है. 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा. நம் அனைவரின் கட்சிகளின் நிலை எண்ணங்கள் வேறு வேறாக இருக்கலாம். ஆனால் நாட்டு மக்களின் எண்ணம் நாட்டை வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாற்றுவது என்கின்ற அந்த எண்ணம் மக்கள் மனதிலே நிலை பெற்றுவிட்டது. होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नजर नहीं आया था. चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी. लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था. हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आजाद होकर रहना है. मैं आज देख रहा हूं कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है. சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் நடந்த சுதந்திர போராட்டங்கள், உப்பு சத்தியாகிரகம் போன்றவை அப்போதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயமாக இருக்கலாம். ஆனால் சுதந்திரம் அடைகின்ற அந்த 25 ஆண்டு காலத்தில் அது மிகச்சிறந்த விஷயமாக மாறிவிட்டது. அதே போலவே இப்போது மக்கள் மனதிலே வளர்ச்சியடைகின்ற பாரதம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது. 25 साल में देश विकसित भारत न बने, हर किसी का सपना है. எனவே அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் संकल्प बना लिया, வளர்ச்சியடைந்த நாடாக இந்தியா மாறும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. लेकिन जुड़ना हर एक को होगा. और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे. ये मेरा நம்மில் பலர் அந்த சமயத்திலே இல்லாமல் போகலாம். இருப்பினும் இருப்பவர்கள் அனைவரும் அதனுடைய பலனை அனுபவிப்பார்கள். 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं. व्यवस्था में இந்த 5 पारदर्शिता ஆண்டுகள் लाकर இளைஞர்களுக்கு युवाओं को மிக முக்கியமான சட்டங்களை நிறைவேற்றுகின்ற ஆண்டாக இருந்திருக்கிறது. पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था, தேர்வுகளின் போது நடக்கின்ற முறைகேடுகளை எதிர்த்து நாங்கள் கடுமையான சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். எனவே அவர்களுக்கு எந்த விதமான கவலையும் இல்லாமல் அவர்கள் मन के भाव को தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளலாம். बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती. எந்த उसको ஒரு மனித नित्य ஜாதியும் परिवर्तन के लिए अनुसंधान ஆய்வுகள் செய்யாமல் வளர்ச்சியடைய முடியாது. मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में मानव अनुसंधान होते जातिயின் रहे, जीवन बढ़ता லட்சம் चला है. ஆண்டுகளுடைய சாட்சியாக இந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் இருந்திருக்கின்றன. इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत இந்த அவையிலே ஆய்வுகளை உற்சாகப்படுத்துவதற்கான சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पता, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं. ஆய்வுகள் और इतना बड़ा महत्व சாதாரணமாக இந்த அவையிலே விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருப்பதில்லை. ஆனால் அதனுடைய விளைவு மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது. व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है. हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है. आज भी दुनिया की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं. लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा
यह मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले 21ஆம் நூற்றாண்டில் நம்முடைய அடிப்படை தேவைகள் சற்று மாறி இருக்கின்றன. जैसे डेटा, पूरी दुनिया में चर्चा है डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला करके पूरी குறிப்பாக भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है। இணைய வழியில் நாம் கொடுக்கின்ற டேட்டா शस्त्र हमने उसके हाथ में दिया है, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी நாம் करेंगे। குறைந்த விலையில் டேட்டா அனைவருக்கும் தருகிறோம். இதனால் இளைஞர்கள் இந்த சக்தியை கொண்டு உலக அளவில் பெரும் சாதனைகளை செய்ய முடியும். और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन करते हैं, अपने अपना नई नई व्यवस्था अनुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और डाटा का उपयोग कैसे हो उसकी भी उसमें गाइडलाइंस है। अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए इसका सामर्थ्य कैसे आए, டேட்டாவை எப்படி பாதுகாப்பது என்பது பற்றியும் அந்த புதிய டேட்டா சட்டத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். भारत इस शक्ति के इसलिए विशेष है क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्फ हमारा रेलवे पैसेंजर्स का डेटा कोई देख ले, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संशोधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने நம்மிடத்திலே पहचान உருவாகின்ற करके அந்த इस புள்ளி कानूनी விவரங்கள் व्यवस्था को दिया है। ஒரு ரயிலில் பயணிக்கின்ற பயணிகளின் புள்ளி விவரங்களாக இருக்கட்டும், அது உலகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம். இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, ये ऐसी त्रिविध शक्तियों का मुकाबला करने की கடலில் உள்ள आवश्यकता पड़ी வளம், हुई है। விண்ணில் உள்ள வளம், சைபர் உலகத்தில் உள்ள வளம், இந்த மூன்றையும் பயன்படுத்துகின்ற வகையிலே நாம் பணியாற்றி இருக்கிறோம். इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को हर चुनौतियों को चुनौती लेने का सामर्थ्य भी இந்த बनाना है। விஷயத்தில் நேர்மறையான स्पेस से जुड़े திறன்களை நாம் வளர்க்க வேண்டும், எதிர்மறையான திறன்களை நாம் ஒடுக்க வேண்டும். दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस की रिफॉर्म का काम हमारे यहाँ हुआ இந்த है। வகையிலே விண்வெளித்துறையிலே பல சீர்திருத்தங்களை செய்திருக்கிறோம். देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं उसमें 17वीं के लोकसभा के सभी माननीय सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் நாம் செய்திருப்பதில் இந்த 17வது லோக்சபாவின் உறுப்பினர்களுக்கு பெரும் பங்கு இருக்கிறது. बेवजह हम जनता जनार्दन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा, ये गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। और इसके लिए भी நாட்டில் உள்ள மக்களை பல்விதமான சட்டப்பிரிவுகளை வைத்து எந்த பணியையும் செய்ய முடியாமல் நாம் தடுத்து வந்திருந்தோம். அவற்றையெல்லாம் நாம் நீக்கி இருக்கிறோம். அதற்கு இந்த 17வது மக்களவை உதவி செய்திருக்கிறது. हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। குறைவான அரசின் தலையீடு, रोजमर्रा की जिंदगी में அதிகமான हर அரசின் பணி என்ற கொள்கையில் எவ்வளவு விரைவில் பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து அரசை வெளியே கொண்டு வருவோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது என்று நாங்கள் நினைத்தோம். लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवी की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी
कानूनों को हमने हटाया है। கம்பெனி சட்டம் ईज ऑफ போன்ற 70க்கும் அதிகமான தேவையில்லாத சட்டப்பிரிவுகளை நாங்கள் நீக்கியிருக்கிறோம். आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। நாம் வளர்ச்சியடைய வேண்டுமானால் இத்தகைய தேவையில்லாத சட்டங்கள் நீக்கப்பட வேண்டும். तो ऐसे है छोटी छोटे कारणों से जेल में भर दो बस। यहाँ तक कि फैक्ट्री है और उसके शौचालय को 6 महीने में एक बार के साथ आगे बढ़ाना है। விவேகானந்தர் சொல்லிய அந்த மொழிகளைப் போல பாரதத்தின் பெருமைகளை உலகம் பார்க்க தொடங்கிவிட்டது. இந்த பயணம் தொடர வேண்டும். कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा வருகின்ற है தேர்தல் நம்முடைய ஜனநாயகத்தின் பெருமையை மேலும் அதிகரிக்கும், பறைசாற்றும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो ज़रा और आनंद आता है। நான் இந்த அவையிலே இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போதுதான் என்னுடைய சக்தி அதிகரிக்கிறது. प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, 17வது மக்களவையின் கடைசி கூட்டத்தொடர் இன்றோடு நிறைவடையும் நிலையில் மக்களவையில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வந்தார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.